I'm going to introduce Mr. Sushil Chaudhary, a motivator, trainer, and writer, a career counselor, parenting expert, and a certified life skills coach. His radio and TV interviews have been broadcasted on local TV and radio channels. He has been invited as a career expert in radio. He has conducted many training programs on positive attitude, self marketing, human relations, and public speaking in various cities of India. He is associated as a guest faculty of personality development, body language, and other skills development courses with many government, corporate, private organizations. He is frequently invited as a guest faculty at Officers Training Institute of Government of Rajasthan, Institute of Chartered Accountants of India, Jodhpur, Institute of Company Secretaries of India, Jaipur and Jodhpur, Teachers Training Center, Department of Technical Education Department of Science and Technology, Government of Rajasthan. He is visiting faculty at Ministry of Textiles, Government of India. He have been with many of recognitions. Some of you are as follows. Awarded as Eklavya Puraskar winner for outstanding training of Zone 5th Rajasthan in 2016 by Home Minister of Rajasthan Honorable Shri Gulab Chandraji Kataria. Awarded as Eklavya Puraskar again as a runner-up for outstanding trainer of Zone 5th Rajasthan in 2013, 17 and 18. Awarded as a Kamal Patra by JCI Jodhpur Metro in 2008 and by JCI Jodhpur Yuva Shakti in 2030. Honored by Lions Club Jodhpur for outstanding contribution in training and development. Honored once again by Blood Bank and District. Thank you much. Chairman of Jodhpur ICI CA Sundar sir, Sikasa Chairman Jodhpur branch CA Dhaval Kothari ji, Akshay Nair, Mohibur Rahman and all participants. First of all, I would like to thank Darshil Harkut for presenting such a nice introduction of me. So today we are going to talk about the communication. अभी जो हम कर रहे हैं वो भी communication ही है, बट हम communication को समझेंगे कि exactly communication होता क्या है. Good communication skills are key to success in life. ऐसा कहा जाता है कि हम विदाउट कम्युनिकेशन हमारे पास कितना भी नॉलेज है हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं. यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. दो आई एम नॉट गोइंग इनटू एनी पॉलिटिकल टॉक, बट 2014 इंडियन इलेक्शन और उस इलेक्शन को लेकर हार्वर्ड और डिफरेंट वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज में केस स्टडी हुई कि इंडिया में 28 इयर्स के बाद में किसी पार्टी को फुल मेजोरिटी मिली. और जब ये केस स्टडी हुई तो उन्होंने ये जब रिसर्च किया तो उन्होंने ये देखा कि द सक्सेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिकेशन. बिकॉज होता ये था कि वो जो भी करना चाहते थे वो लोगों से बात करते थे, बहुत ज्यादा पब्लिक मीटिंग करते थे, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे, तो वो उनको एक लैंडस्लाइड विक्ट्री में कन्वर्ट हुआ. 2014 का जो इंडियन इलेक्शन था दैट वाज वॉन बिकॉज ऑफ द गुड कम्युनिकेशन. दो बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आप ये समझ सकते हैं कि मनमोहन सिंह भी कोई उनके वर्किंग में बहुत बुरे नहीं हुआ और ही वाज अ गुड इकोनॉमिस्ट. आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं बट आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं. सो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर की टू सक्सेस इन लाइफ, वर्क एंड रिलेशनशिप्स. Without effective communication, a message can turn into error, misunderstanding, frustration, and even disaster by being misinterpreted or poorly delivered. How? I just give you one example. एक दुनिया का बहुत ही बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था और तो बहुत ही कर्टसियस वे में बार-बार एटीसी कह रहा था कि वी आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, सो प्लीज गिव अस लैंडिंग फर्स्ट, प्लीज गिव अस लैंडिंग फर्स्ट. पर मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा नहीं बोल रहा था, बहुत ही आराम से बोल रहा था. वी आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल नाउ, प्लीज गिव अस लैंडिंग फर्स्ट, प्लीज गिव अस लैंडिंग फर्स्ट. एटीसी को लगा ये मांग रहे हैं लैंडिंग फर्स्ट, पर एटीसी ने ध्यान नहीं दिया. एटीसी के साथ पास कई सारी लैंडिंग पेंडिंग थी तो उसने थोड़ा इग्नोर किया. हाँ, इनको हम लैंडिंग दे देंगे. और थोड़े देर के बाद उस प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया, वो क्रैश हो गया, काफी सारे लोग मारे गए. जब उस एटीसी की रिकॉर्डिंग सुनी गई, सारी जो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी गई, तो ये पाया गया कि पायलट ने एम्फेसाइज नहीं किया अपनी नीड पर, पायलट ने जोर देकर नहीं बोला, पायलट ने कम्युनिकेट किया.
ऐसा नहीं उसने वर्ड्स जो बोलने चाहिए थे नहीं बोले, पर जैसे बोलने चाहिए थे वैसे नहीं बोले। मीन्स उसको बहुत ज्यादा परेशान होकर बताना चाहिए था कि वी आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, अगर हम लोगों को लैंडिंग नहीं दी जाती है इतने लोग मर सकते हैं, वी आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, प्लीज गिव अस लैंडिंग फर्स्ट, अदरवाइज डिजास्टर विल हैपन। तो ये सोचते ही एटीसी के कान खड़े हो जाते, एटीसी ऑब्वियसली उनको पहले लैंडिंग देता। इसीलिए बट हाँ ये भी जरूर कई, बट अननेसेसरी हमें हर बार अर्नब गोस्वामी बनने की भी जरूरत नहीं होती है। आजकल जैसा आप टीवी पे देखते हैं कि हर चीज अगर हम अर्नब गोस्वामी की तरह उठाएंगे तो लोग ये हमसे परेशान हो जाएंगे, बिकॉज ऑफिस में वो टीवी पे चलता है। इसीलिए सिंस टुडे इज द बर्थडे ऑफ आवर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी, और उनके जैसा पूरी दुनिया में एक ही इंसान हुआ है ऐसा सिर्फ हम नहीं पूरी दुनिया भी मानती है। तो हम लोग कई बार गांधी जी को कुछ लोग बुरा भी कहते हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं होता, बिकॉज वी आर लिविंग इन द कंट्री ऑफ गांधी, जहाँ पे हमारी हर असहमति को भी सुना जाता है। और उन्होंने कहा था इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप बहुत ही जेंटल वे में भी दुनिया को हिला सकते हैं। उनका अपना एक कम्युनिकेशन तरीका था और वो उसमें भी सक्सेसफुल थे। अर्नब गोस्वामी इज सक्सेसफुल इन मीडिया बिकॉज ही हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, a different way of communication. That's why ऐसा कहा जाता है कि communication refers to the exchange of thoughts and idea with the intention of conveying information. जिसे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज भी क्या हो रहा है, वी आर सिटिंग ऑन जूम मीटिंग, और हम लोग इस जूम मीटिंग में मेरे को जो पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आपने इनिशियली जो आपको बताना था वो आपने बताया। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्सचेंजिंग द थॉट्स एंड आइडियाज with the intention of conveying information. Ultimately we are, हम लोग यहाँ इंफॉर्मेशन एक दूसरे को दे रहे हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने समझ लीजिए खूब सारी इंफॉर्मेशन आपको दी, या फिर किसी भी स्पीकर ने आपको खूब सारी इंफॉर्मेशन दी, बट द मेन क्वेश्चन इज क्या आपको वो इंफॉर्मेशन समझ में आई? डिड यू एब्जॉर्ब दैट इंफॉर्मेशन? वर यू एबल टू एब्जॉर्ब दैट इंफॉर्मेशन? है ना, ये पहला तो हुआ डिड यू एब्जॉर्ब दैट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आप पे आया क्योंकि आप सुनना नहीं चाह रहे थे। हो सकता है ऐसे जूम मीटिंग पे होता है। मैं एनआईएफटी में विजिटिंग फैकल्टी हूँ और पिछले 7-8 महीनों से हम लोग एनआईएफटी की जो क्लासेस है, 6 महीने से एनआईएफटी की जो क्लासेस है ऑनलाइन ले रहे हैं। तो अब ऐसा हमको बार बार देखना पड़ता है क्योंकि 4-4 घंटे के लेक्चर होते हैं, तो बीच बीच में हमें बार बार कनेक्ट होना पड़ता है, देखना पड़ता है बच्चा है कि नहीं, वो ऐसा तो नहीं कनेक्ट करके बैठा है। तो हमें बार बार पूछना पड़ता है कि ना, उसको से कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं क्योंकि हम लोग सब जूम पे कनेक्टेड है। और जूम पे कनेक्टेड है, बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि उसको 9 बजे क्लास है, नींद में से उठेगा, लॉग इन करके वापस सो जाएगा, क्या मैं नींद पूरी करता हूँ। और पहले क्या होता था कि 9 बजे फिजिकल क्लास में आना होता था, 9 बजे फिजिकल क्लास में आना होता था, तो वो उसको उसके लिए वो उठता था, नहाना या नहीं नहाना वो आजकल के बच्चों की इच्छा है, बट वो तैयार होके आता था और क्लास में सामने उसका फेस दिखता था तो वो सो नहीं सकता था। बट आज के टाइम में जैसा मेरे बच्चे भी जो है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, ठीक है, वो मुझे दिखता है वो सिंसियरली कर रहे हैं, पर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वीडियो अगर ऑन रखने को नहीं कहा जाए तो बच्चा ऐसा भी हो सकता है वो सो जाए और है ना सिर्फ लॉग इन करना जरूरी हो जाए। तो आपको पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं, पर वो पार्टिसिपेंट वो फिजिकली आपको वहाँ आइकॉन्स दिख रहे हैं, बट वो है कि नहीं, वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हाउ वेल वी कम्युनिकेट, हाउ वेल वी कम्युनिकेट इज डिटरमाइंड नॉट बाय हाउ वेल वी से थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखिएगा, नॉट हाउ वेल वी से थिंग्स बट हाउ वेल वी आर अंडरस्टूड, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लोगों ने हमको समझा? हाउ वेल वी से थिंग्स, हमने बहुत अच्छी चीजें बोली, हमने बहुत अच्छी तैयारी करी। आज समझ लो सुशील चौधरी ने बहुत अच्छे से तैयारी करी कि मुझे आईसीआई में सिकासा के लिए बोलना है, बट क्या मैंने जो बोला मैं मेरी बात समझ में आई जो मैं इतनी देर तक बोलता रहा? क्योंकि मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छी तैयारी करी, पर मेरी लैंग्वेज, मेरा जो कंटेंट था वो कोई समझ पाया कि नहीं समझ पाया। सो इट इज नॉट हाउ वेल वी से थिंग्स। स्कूल में क्या होता है, बच्चों को आदत हो जाती है, बच्चों को सिखाया जाता है तैयारी करके आओ, तो एग्जाम के लिए बेस्ट तैयारी करो, ओरल के लिए बेस्ट तैयारी करो, प्रैक्टिकल के लिए बेस्ट तैयारी करो, साथ ही साथ जो है डिबेट कंपटीशन वगैरह के लिए बहुत तैयारी, बहुत सारा कंटेंट लेके आओ, खूब सारा कंटेंट होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। बट दिस इज नॉट अ कम्युनिकेशन। अभी आपके
आपके सामने जना बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, तो आप थक जाएंगे, आप उसको सुनना बंद कर देंगे। आपके दोनों कान खुले होंगे, फिर भी आप उसके साथ जो इंफॉर्मेशन आपके कान में आ रही है उसको दिमाग में भेजना बंद कर देंगे। ये इंसान के अंदर ये सिस्टम है। आप एक कान खुले हुए का मतलब ये नहीं है कि कान के अंदर जो भी डाला जा रहा है वो दिमाग में जा रहा है। आप जब सुनना बंद कर देते हैं तो वो चीजें जो है आपके दिमाग में जाना बंद हो जाती है। तो अल्टीमेटली कम्युनिकेशन तब मीनिंगफुल है जब वो चीजें दिमाग के अंदर जाती हैं, जब वो चीजों का कोई फायदा होता है, जब वो चीजों को अगला आदमी एब्जॉर्ब करता है। अदरवाइज कम्युनिकेशन इज फेल, कम्युनिकेशन है ही नहीं। आपने बोला, क्योंकि जब तक आप सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं, मैं इन चीजों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता हूँ कि पहली बार हुआ कि मोदी जी के यूट्यूब पे मन की बात पे या कौन से स्पीच पे लाइक से ज्यादा डिसलाइक आए, लाइक से ज्यादा डिसलाइक। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने उस वक्त ऐसी बात बोली जो लोग सुनना नहीं चाह रहे थे, तो लाइक से ज्यादा डिसलाइक आने लग गए। तो जबकि पहले उनका सोशल मीडिया बहुत अच्छी पहचान थी, वो एक ट्वीट लिखे, वो एक वीडियो डाले, दुनिया भर के लाइक्स आते थे, कहाँ कहाँ से उनके फैन फॉलोइंग है। बट लाइक्स और डिसलाइक जब आप ऐसी बात बोलो जो लोग नहीं सुनना चाह रहे, क्योंकि मोस्ट रेलेवेंट एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, उसके अलावा भी कई सारे लोग हैं जिनके कभी कभी जब वो लोग बदनाम हो जाते हैं, लाइक से डिसलाइक आने लग जाते हैं, क्योंकि आपकी इमेज इसमें मैटर करती है। तो अगेन कम्युनिकेशन में इमेज भी मैटर कर रही है, क्योंकि महात्मा गांधी वॉज नॉट अ गुड पब्लिक स्पीकर। उनकी आवाज में जोश भी नहीं था, उनकी पिच भी हाई नहीं थी, उनका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं था गांधी जी का, बट लोगों को उन पे भरोसा था। इसलिए महात्मा गांधी जब धीरे से भी एक लाइन बोलते थे तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था कि गांधी जी बोलने वाले हैं। तो सब लोग पिन ड्रॉप साइलेंस था, गांधी जी क्या बोलेंगे वो सुनते थे। इसलिए उनकी इमेज की वजह से, बिकॉज ऑफ हिज इमेज, हिज कम्युनिकेशन वाज गुड। तो आपकी इमेज अच्छी है तो लोग आपको सीरियसली सुनेंगे। पुरानी फिल्म, हिंदी फिल्मों में होता था कि राजकुमार के एंटर होते ही हॉल में सन्नाटा छा जाता था कि राजकुमार है, क्या डायलॉग बोलेगा, बहुत मैटर करता है। कि राजकुमार की बोली भी हर लाइन के लिए लोग वेट करते थे कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट लाइन ऑफ दिस ऑफ राजकुमार। तो इसलिए उसकी एक इमेज बन गई कि हाँ, इनका हर डायलॉग मीनिंगफुल है, ये डायलॉग सुनने के लिए लोग आए हैं, और इसलिए उनका कम्युनिकेशन, वो कुछ भी बोलते थे वो सक्सेसफुल हो जाता था। हम इन चीजों से सीख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन का फेल होता है। हियर आई गिव यू, आई टेल यू वन स्टोरी। और ये स्टोरी हमारे बहुत पुराने टाइम से हमारे यहाँ सुनते आए हैं। ये मैंने जब इसको रिसर्च की तो पता चला कि जैन आगम के अंदर भी ये स्टोरी मेंशन है, और बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर के अंदर भी ये स्टोरी मेंशन है, और दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में, हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में भी ये स्टोरी पढ़ाई जाती है। अब ये स्टोरी क्या है? देयर वर 6 ब्लाइंड मैन। अब वो 6 ब्लाइंड मैन जो थे वो दुनिया की हर चीज का वो समझना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था ब्लाइंड है तो क्या हुआ, हमें पता होना चाहिए फ्लावर्स कैसे होते हैं, हमें पता होना चाहिए कि एनिमल्स कैसे होते हैं, सब क्या होता है। तो उनको, उन्होंने कभी हाथी को फील नहीं किया था, व्हाट एलिफेंट इज। तो उन्होंने कोई अरेंजमेंट किया, गांव में एलिफेंट आए तो हमें बताना, हम पैसे देने को तैयार हैं। तो जब गांव में एलिफेंट आया, उन्हें बताया गया, तो वो 6 के 6 जो ब्लाइंड थे वो एलिफेंट के पास गए देखने के लिए कि एलिफेंट कैसा होता है, समझने के लिए, और टच करके समझने लगे। तो पहला जना जो था वो एलिफेंट के पाँव को पकड़ के बैठा, और गोल गोल पाँव है, ऊपर जा रहा है, तो उसको लगा ये तो कोई पेड़ का तना है। तो उसने बोला दिस इज एलिफेंट एंड दिस इज लाइक अ ट्री। एलिफेंट जो है ट्री जैसा होता है। दूसरा जना सीढ़ी लगा के एलिफेंट के पेट को हाथ फैला रहा है, इतना बड़ा पेट है, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो उसने कहा नो नो, एलिफेंट इज लाइक अ वॉल। और तीसरा जो था वो एलिफेंट की सूंड पकड़े बैठा है, गोल गोल है, सांप जैसी लग रही है इसको। तो बोला नहीं नहीं, हम जैसा कहते थे वैसा सोचते थे, एलिफेंट वैसा नहीं होता है, एलिफेंट इज लाइक अ स्नेक, ये तो सांप जैसा होता है, देखो मेरे हाथ में एलिफेंट एकदम गोल गोल है। एक जना जो है एलिफेंट के दांत को पकड़ के बैठा है, तीखा तीखा दांत है। तो उसने बोला कोई भाले जैसा है, उसने कहा एलिफेंट इज लाइक ए स्पीयर, ये तो लेकर हम लड़ाई करते जाएंगे, किसी को मारना होगा तो लेके जाएंगे एलिफेंट को, साथ में हाथ पे उठा के ले जाएंगे और मारेंगे। और एक जना जो उसका कान पकड़ के हिला रहा है, एलिफेंट का पंखा हवा खा रहा है, वो बोला ये तो फैन है, एलिफेंट जो होता है फैन होता है, इसको हिला हिला के हम हवा खाते हैं। अब आखिरी जना जो था, लास्ट ब्लाइंड जो था, वो एलिफेंट की जो है पूंछ पकड़ के बैठा है, और वो कह रहा है एलिफेंट इज लाइक अ रोप, ये तो देखो रस्सी जैसा है मेरे हाथ में, इससे कोई बांधने का काम आता होगा। अब उनमें से कोई गलत नहीं था,
कोई भी गलत नहीं था, सभी लोग सही थे, पर वो लोग सिर्फ अपने अपने दायरे में ही उस चीज को समझ रहे थे। कम्युनिकेशन में हम कभी भी देखते हैं कि डिस्प्यूट होता है या लोग एक ही चीज को अलग अलग तरीके से देखते हैं, अलग अलग नजरिए से देखते हैं, हर एक का सोचने का तरीका अलग होता है, नॉलेज अलग होता है, क्योंकि हर एक ने एक लेवल का ही नॉलेज लिया होता है। क्योंकि जब कोविड नहीं आया था और जब नया नया आया था तो हर एक को इसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज था। कोई कहता था अच्छा इससे कोविड हो गई, कोविड का ये सिम्टम है, कोई कहे कोविड का, क्योंकि उसने जितना पढ़ा है, और नेचुरली डॉक्टर हमसे ज्यादा जानेगा। हम बीमारी की बात करेंगे तो डॉक्टर हमसे ज्यादा जानता है, और हम अकाउंट्स की बात करेंगे तो चार्टेड अकाउंटेंट हमसे ज्यादा जानता है। तो हम अपने परसेप्शन, अपने एजम्पशन लगाएंगे, बट अगला आदमी जो उसमें नॉलेज रखता होगा वो हमसे ज्यादा जानता होगा। तो हम लोग अपने अपने दायरे में रहते हैं, और यही कम्युनिकेशन में मेन प्रॉब्लम है कि हम अपने दायरे में रहते हुए भी ऐसा मानते हैं कि हम बहुत ज्यादा जानते हैं, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। हम कम्युनिकेशन में फेल तब होते हैं जब हम ये जान के कम्युनिकेशन करते हैं कि हम तो बहुत जानते हैं, हम तो परम ज्ञानी है, और परम ज्ञानी है तो हमारा कम्युनिकेशन गलत हो ही नहीं सकता, और वहां जाकर हम कम्युनिकेशन में फेल हो जाते हैं। कि कम्युनिकेशन इज अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ, अभी आप अपने सामने देख रहे हैं कि हम किस किस चीज को कम्युनिकेशन में एक्सपीरियंस करते हैं। तो कम्युनिकेशन ब्रिंग लाइफ टू लाइव्स। अब कैसे आपकी लाइफ कम्युनिकेशन के बगैर कैसी है? आपकी लाइफ में लाइफ तब आएगी जब आप कम्युनिकेट करोगे। कैसे? आपने कोई बात सुनी, आपने बात सुनी और समझ लो आप किसी को नहीं बता पाए, तो आपकी लाइफ से बेकार हो गई। वो बात सुनने का मजा खत्म हो गया। अब आप परेशान हो रहे हो, बात तो सुन ली, यू हैव हर्ड समथिंग बट यू कांट टेल एनीवन, तो अब आप को तो परेशानी हो गई। अब रीजन कई हो सकते हैं, या तो आपकी लैंग्वेज को समझने वाला कोई आदमी आपके पास नहीं है, इसलिए आपने जो आज सुनी आप वो नहीं बता सकते, या तो ऐसा स्ट्रिक्ट रूल है कि आपको कुछ बात नहीं बोलनी है, आप बताना नहीं है। तो कई लोग कुछ ऑफिस में एंजॉय नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे उनको अपनी जैसी बातें करने वाले लोग नहीं मिलते। जैसे आपके यहाँ पे भाई अक्षय और मोहिबुर दोनों जनों की बातों का लेवल एक ही है, इसलिए वो अपनी वर्किंग को भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको लगता है हमारी जैसी बातें करने वाला कोई जना है, तो इसलिए जो सुनेंगे वो डिस्कस कर सकते हैं। पर ऐसा ही बिल्कुल ही दोनों डिफरेंट तरीके के हों, या दोनों की लैंग्वेज बैठ नहीं बैठती हो, दोनों विचार आपस में नहीं बैठते हैं, तो दे वोंट एंजॉय देयर वर्क बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन आप काम को एंजॉय नहीं करने देता है। आपने स्मेल किया कुछ, अपन को होता है ना आजकल स्मेल आ रही है, तो हम घर पहुंच के कहते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, या आपको अगर आप बोलोगे तो आप कम्युनिकेट करोगे, तो आप उसको स्मेल को एंजॉय करोगे, स्मेल के बारे में बताओगे। आप कुछ देखोगे वो भी आप कम्युनिकेट करना चाहोगे, आप कुछ टेस्ट करोगे वो भी आप कम्युनिकेट करना चाहोगे, और आप कुछ टच करोगे तो भी आप कम्युनिकेट करना चाहोगे। इसलिए कहते हैं कि कम्युनिकेशन ब्रिंग्स लाइफ टू लाइफ। इमेजिन लाइफ विदाउट बीइंग एबल टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट द कम्युनिकेशन। आपने आज क्या फील किया? जैसे सिंपल सी बात है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि बारिश हुई, और बारिश होते ही हमको ऐसा लगता है कि अब सबको बताना है। हम में से कोई जना फेसबुक पे डालता है, कोई जना व्हाट्सएप भेजता है, कोई जना अपने ऑफिस पे चिल्ला चिल्ला के बताता है, कोई जना अपने घर पे चिल्ला चिल्ला के बताता है, कोई जना फोन करता है कि मेरे यहाँ बारिश हो रही, तेरे यहाँ हो रही है क्या? अब ये सब क्या है? बारिश हो रही है ये चीज फोन करके पूछने की चीज है क्या? तुरंत आप ऑफिस में, आप घर पे फोन करते हो, यार ऑफिस से तो बारिश हो रही है, आप बेटे हो रही है, तो अपने आदत हो गई। तो क्या वी एंजॉय रेन? दैट्स व्हाई वी वांट टू कम्युनिकेट अबाउट द रेन, बिकॉज दिस इज अवर लाइफ। वी एंजॉय अवर लाइफ बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, है ना? अपन आज हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि आज मैं मिर्चूड़ा लेने गया, बहुत भीड़ थी, ऐसा हो गया, तो हम पूरी घटना बताते हैं, सब लोग उनको सुनते हैं, तो वो लोग हमको सुनना एंजॉय कर रहे हैं, हम उनको बताना एंजॉय कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस वॉट एवर वी हैव इन माइंड। मतलब मेरे दिमाग में क्या भरा पड़ा है वो मैं कम्युनिकेट करके बताता हूँ। आवर थॉट्स, आवर फीलिंग्स ऑफ जॉय, आवर फीलिंग्स ऑफ सॉरो। हम सुबह आए ऑफिस में और सिर पकड़ के बैठ गए, यार आज तो ये हो गया, मेरे रिलेटिव की डेथ हो गई, वैसा हो गया, तो कम्युनिकेशन है। अब कम्युनिकेशन में दो तरीके से किया आपने। पहले आप सिर पकड़ के बैठ गए, इट मींस आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट किया। दूसरा, अब आपने रोती हुई आवाज में कम्युनिकेट किया कि आज ऐसा हो गया, मेरे घर में ऐसा हो गया, पड़ोस में ऐसा हो गया, तो दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। मतलब आपके वर्ड्स में भी कम्युनिकेशन है, एक्सप्रेशन में कम्युनिकेशन है, बॉडी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन है। योर हैप्पीनेस, योर सक्सेस,
हेल्प अस टू लर्न एंड बी अवेयर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी कि दुनिया आप बताओगे तो लोग आपको बताएंगे, तब आपको दुनिया बारे में पता चलेगा, और तभी आपको नॉलेज बढ़ेगा, तभी आप है ना अवेयरनेस आएगी। अब होता है आप कोई नई जगह जाते हो तो आपको जो इच्छा होती है कि मेरे को पता चले ये सब क्या है। जैसे मेरे साथ कई बार होता है, मैं तमिलनाडु गया कई बार, तो वहाँ पे अगर कोई आदमी मतलब मेरे से बात करने वाला मिल जाए जो हिंदी में या मेरी बात को समझता हो, तो मेरे को बड़ा मजा आ जाता है उस दिन कि आज जो आदमी है मेरे से हिंदी में बात कर रहा है, क्योंकि आई एम इन तमिलनाडु एंड वन मन बाकी सब लोग तमिल में बात कर रहे हैं, वो तमिल के अलावा कुछ ही जानते हैं, और मेरे को एक आदमी ऐसा मिल गया जो बड़ा टूटी फूटी हिंदी में बात कर रहा है या हिंदी इंग्लिश मिक्स में बात कर रहा है, पर ही मेड माई डे। वाई? क्योंकि इतने दिन से मैं लोगों से बात नहीं कर पा रहा था, मैं उन लोगों को कुछ बताना चाहता था, तो आधी बात मुझे जितनी भी इंग्लिश उनको समझ में आती है और जितने बाकी इशारों से मुझे बतानी पड़ रही है, और एक दिन मुझे कोई हिंदी में बात करने वाला मिल गया उन 5 दिनों के अंदर, तो दैट डे द मोस्ट मेमोरेबल डे फॉर मी इन द ऑफ दैट विजिट। व्हाई? क्योंकि मैंने उस दिन कम्युनिकेट किया। बाकी दिनों में मैं अपने आप से ही बात करता रहा, मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैं अपने आप को कहता, नई चीज देता अपने आप को कहता, क्योंकि लोग मेरी बात नहीं समझते थे। इसलिए कम्युनिकेशन आपको नई चीजें सीखने में भी हेल्प करता है। अब जो कॉमन वेज है कम्युनिकेशन के हम देखते हैं, जो हम काम में लेते हैं, सबसे बड़ी चीज जो अभी हम कर रहे हैं दैट इज स्पीकिंग, हम बोल कर कम्युनिकेट करते हैं। और दूसरा है राइटिंग, जो ऑफिस में हम करते हैं। व्हाट्सएप भी अब राइटिंग कम्युनिकेशन में आ गया है ना। और पहले एसएमएस हुआ करता था, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इवन फेसबुक पे भी हम चीजें लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और ऐसे हमारी कई सारी साइट्स हैं, कोरा जैसे ब्लॉग्स हैं। जब आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भर जाए, आपको गुस्सा आ जाए कि मैं जो बताना चाहता हूँ कुछ सुनना नहीं चाहता, मेरे पॉलिटिकल व्यूज अलग है या मेरे मन में बातें अलग है, तो आप जाए कोरा पे भड़ास निकाल लेते हो, बहुत सारा ब्लॉग लिख देते हो कहीं पे जाके, क्योंकि आपकी बात को सुन नहीं रहा था, आप ब्लॉग लिख दोगे, या आप ट्विटर पे लिखते हो। तो कई लोग हैं जिनकी बात कोई नहीं सुनता, वो ट्विटर पे जाके लिखते हैं। बट आपको सेल्फ कंटेंटमेंट मिलता है जब आप कोरा पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे कुछ लिखते हो, इसलिए राइटिंग कम्युनिकेशन। उसके बाद है विजुअल इमेज, जो आप कईयों को आप इमेज से भी कम्युनिकेट करते हो। आजकल जैसे इमोजीज तो हम लोग यूज कर ही रहे हैं, स्टिकर्स आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? क्योंकि ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। ह्यूमन बिहेवियर में क्या है कि आप इमेज से लोगों को बताना चाहते हो कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मुझे चीज अच्छी लगी कि नहीं लगी, और ये लोग व्हाट्सएप चैट में हम लोग काम में लेते ही लेते हैं। फोर्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द बॉडी लैंग्वेज। और अभी बिकॉज ऑफ द दिस पैंडेमिक हमारा फोर्थ कम्युनिकेशन टाइप का कम्युनिकेशन है वो सफर कर रहा है। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज में क्या होता था कि अभी तो हम सिर्फ चेहरा देख पा रहे हैं, आप उसके हैंड मूवमेंट, आप उसका जो है चलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, उसको कितना गुस्सा आ रहा है, वो क्या कर रहा है, चीजें उठा उठा के फेंक रहा है, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है कि मैं चीज उठा के फेंक रहा हूँ, यानी मैं गुस्से में हूँ। मैंने घर आते ही जो है अपना बैग जोर से फेंका है। मैंने घर आते ही जो है, अभी अक्षय कार में जा रहा है तो उसने घर जाती कार की चाबी फेंकी, यानी कि घर वाले समझ जाएंगे ये मूड खराब करके आया है। बट अगर उसने जेंटली गाड़ी की चाबी रखी है और बहुत अच्छे से स्माइल करता हुआ एंटर कर रहा है, तो घर वाले समझ जाते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छे मूड में है। तो ऐसा कई बार बच्चों को पापा से कुछ चाहिए होता है। आप हम लोग भी जब छोटे थे तो पापा के घर पे आने पे उनका मूड देखा करते थे कि पापा का मूड कैसा है। और कैसे पता चलता था, जैसे ही पापा घर आते थे तो वो पहला एक्सप्रेशन क्या देते हैं, सामान को कैसे रखते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चल रहे हैं, उससे पता चल जाता था उनका मूड कैसा है। और ये फोर्थ जो बॉडी लैंग्वेज है वो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। फिर हम उनको अपनी डिमांड उनके सामने रखते थे। सो ओनली ट्रांसफरिंग वर्ड्स इज नॉट द कम्युनिकेशन। आपने बोला वो कम्युनिकेशन नहीं है, आपने क्या एक्सप्रेशंस दिए। जैसा अभी हमने देखा आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, जैसे कि हम सिंपल सी क्वेश्चन पूछते हैं, वेयर वर यू ड्यूरिंग द लंच, तो बहुत आराम से पूछा। और एक टीचर ने बच्चे को गुस्से से यूं पूछा, वेयर वर यू ड्यूरिंग द लंच। अब क्या हुआ, पहले वाले क्वेश्चन सिंपल है, अभी लिख कर पूछे वेयर वर यू ड्यूरिंग द लंच, तो यानी कि एक सिंपल क्वेश्चन है। अब अगर उससे पूछ रहे हैं गुस्से में, वेयर वर यू ड्यूरिंग द लंच, यानी कि गड़बड़ हो गई है, गुस्से से स्कूल से कंप्लेंट आई है तुम्हारी। ये सब चीजें उसके क्वेश्चन पूछने के तरीके से पता चल गया। वर्ड सेम है, पहली लाइन में सेकंड लाइन में वर्ड सेम है, पर
एक्सप्रेशन डिफरेंट है, उससे अगले के अंदर एक फियर क्रिएट हो रहा है कि टीचर ने गुस्से से पूछा है वेयर वर यू ड्यूरिंग द लंच, यानी कि कोई गड़बड़ वाली बात है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स को हम देखते हैं। अब आप ये मेरे सामने चार्ट देख सकते हैं। कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है सबसे पहले, आप देखेंगे ये है सेंडर, और उसको जो कम्युनिकेशन पहुंचाना होता है रिसीवर को। ये दो लोग इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के अंदर, सेंडर एंड रिसीवर। और सेंडर जो भेजता है वो है मैसेज। मैसेज भेजा, आपने किसी को कम्युनिकेट किया, आपने कुछ बताया। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि चैनल मीडियम क्या है। इट कैन बी रिटर्न कम्युनिकेशन, पेपर पे जा सकता है, it can be a fax, it can be a WhatsApp, it can be your recorded message, it can be your telephonic message, or it can be your direct one to one communication, है ना। तो ये चैनल मीडियम हो गया। अब इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनकोडिंग। हम उसे एनकोड कैसे करते हैं, यानी कि ड्राफ्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी को कंप्लेंट करनी है, तो हम वो मैसेज भेजने पहले 4 बार उसको लिखते हैं, ठीक करते हैं, यानी कि उसको बुरा नहीं लगे, या उसको बुरा लगाना है नहीं लगाना है। तो मेरे मन में है वो एज इट इज मैं नहीं लिखता हूँ, या मेरे मन में जो है वो मैं एज इट इज नहीं बोलता हूँ। आपको बॉस से छुट्टी मांगने जाना है या बॉस से छुट्टी का मेल करना है, तो आपको पहले दिमाग में फ्रेम करना पड़ेगा कि मैं इंग्लिश लाइन के टाइम अपनी टाइम में आके उठानी है, ये हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। और फिर हम बोलते वक्त ध्यान रखते हैं कब हमें झुककर बोलना है, कब हमें गुस्से से बोलना है। दैट इज एनकोडिंग। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है डिकोडिंग। डिकोडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, अगला आदमी कैसा समझा। आपने तो बहुत हम्बली बोला, पर अगले आदमी को हम्बली नहीं लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे गलती हो गई, या अगले आदमी को समझ में नहीं आई आपकी हम्बलनेस। तो ये हुआ डिकोडिंग। तो आपने जो बोला उसको अगले ने कैसा समझा। तो हमें कम्युनिकेशन में अगले की एक्सपेक्टेशन का ख्याल रखना पड़ता है कि अगला आदमी कैसे एक्सपेक्ट करता है। जैसे कि पुराने टाइम में राजा महाराजा होते थे, तो राजा महाराजा को डायरेक्ट जाके ऐसे से बात नहीं बोली जाती थी, भले आप सच बोल रहे हो, भले आप बिल्कुल राइट पर्सन हो, फिर भी उनको किस तरीके से बोलना है, कैसे शुरू करना है। आज भी जो हमारे यहाँ जो पुराने तरीके चलने वाले लोग हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, घर हैं, जैसे आज भी किसी घर में जाओ तो ऐसा लगता है कि लेडीज डायरेक्ट बात नहीं करती। हालांकि हम ये बात को फेवर मैं नहीं करता, और पसंद हमें चीज करना भी नहीं चाहिए, पर आज भी कई घरों में ऐसा है कि घर की बहू अगर डायरेक्टली आए कुछ बोले तो उसे बुरा माना जाता है, इसलिए उसको किसी और के थ्रू वो बात कहलानी पड़ती है। तो दैट इज कॉल्ड द, क्योंकि अगर वो सही सही बात भी डायरेक्ट बोलेगी तो भी बुरा मान लिया जाएगा, इसलिए उसको अपनी सही बात पहुंचाने के लिए भी किसी और को बोलना पड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। उसके बाद अगली चीज आती है नॉइस। नॉइस क्या है, आपके कम्युनिकेशन में जो भी चीजें गड़बड़ करती हैं वो सब नॉइस है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। पुराने टाइम में फैक्स से भेजा कम्युनिकेट किया जाता था। अब आजकल तो इंटरनेट के बाद में फैक्स बहुत कम हो गया, अभी भी कुछ जगह फैक्स हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, गवर्नर ऑफिस में फैक्स के ऑर्डर को ही फाइनल माना जाता है अभी भी कई जगह पे। तो फैक्स हुआ करते थे, तो फैक्स में एक ऑप्शन नॉइस का प्रॉब्लम होती थी कई बार। तो आप जो मैसेज फैक्स करते थे, कई बार एक लाइन कट जाती थी, कई बार जो है कुछ लाइनें साफ नहीं आती थी। तो ये वो चीज है जो आपकी नॉइस है। आप अंदर बोलने गए, आपने बॉस को कोई चीज और आधी चीज बोली, जितने बॉस का मोबाइल बच गया, और वो आपने जो चीजें बोली वो तो उसके दिमाग से हट गई। अब आप अपनी बची हुई चीजें ही बोलोगे, तो जो आप माहौल बनाना चाह रहे थे वो तो बना नहीं, गड़बड़ हो गई, बीच में कोई आ गया, बीच में कोई ऐसी चीज हो गई, कोई शोर हो गया, दैट कोई बीच में किसी ने डिस्टर्ब कर दिया। ये सब चीजें आपके कम्युनिकेशन की नॉइस है जो आपके कम्युनिकेशन को बिगाड़ती है। इवन आपने अगर प्रिंट आउट लिया, प्रिंट आउट के अंदर आपने देखा कुछ लाइन्स आ गई, प्रिंट आउट साफ नहीं आया, नॉइस। यानी आपके कम्युनिकेशन, आपने ईमेल भेजी, जिस फॉन्ट में भेजी, अगले के यहाँ वो फॉन्ट ढंग से नहीं खुला, नॉइस। यानी कि आपके कम्युनिकेशन में नॉइस ऐड हो जाती है जो आपके कम्युनिकेशन को बिगाड़ती है। वो वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकता है, रिटन कम्युनिकेशन भी हो सकता है। अब यहाँ क्या हुआ,
कम्युनिकेशन का रिसीवर ने क्या रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया, उसको अच्छा नहीं लगा, या वो न्यूट्रल रहा। और फिर आपको रिसीवर क्या देगा, रिसीवर आपको देगा फीडबैक। फीडबैक में क्या होगा, वो बता सकता है कि मुझे कैसा लगा, मुझे खराब लगा, कैसा लगा। तो ये सारे कम्युनिकेशन के फेजेस हैं, कंपोनेंट्स है कम्युनिकेशन के। आपको देखना पड़ता है कि मेरा कम्युनिकेशन ढंग से पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और उसका असर अगले पर किस तरीके से हुआ। किसी को हाँ और ना जो है बिना वर्ड बोले बता देते हैं। आप कैसे, आपको कौन सी शर्ट अच्छी लग रही है, या आज आपने नए कपड़े पहने हैं, वो भी हम आपको बिना वर्ड बोले बता देते हैं। ऑफिस में आते ही कोई जना कहता है कि यूं यूं यूं, यानी कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो हम समझ गए, वर्ड्स की जरूरत ही नहीं हुई। तो बॉडी लैंग्वेज भी आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज में ऐसे कौन से एलिमेंट होते हैं जो कि जैसा हमने देखा कि स्पीकिंग, राइटिंग, विजुअल इमेजेस, बॉडी लैंग्वेज। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जिनमें वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए एक फार्मूला है। ये फार्मूला कहलाता है सॉफन का फार्मूला। सॉफन क्या होता है, सॉफन है इंग्लिश का SOFTEN, सॉफन। ये वर्ड बन गया। एस से क्या है, एस से है स्माइल। आप मुस्कुराए कोई बात कहते हैं तो अगला आदमी आपसे सामने रिलैक्स रहता है, उसको लगता है मैंने ज्यादा बड़ी गलती नहीं की है। आप गलती करते गए, अरे साहब मेरे से तो गलती हो गई, और उसने मुस्कुरा के बोला कोई बात नहीं, थोड़ी सी पेनल्टी लगा देंगे। अब यहाँ पेनल्टी लगाने की बात कर रहा है, पर मुस्कुराए कर रहा है, तो आप फिर भी रिलैक्स हैं कि यार वो सजा भी दे रहा है पर मुस्कुरा के दे रहा है, यानी कोई बहुत भारी बात नहीं है। ओपन क्वेश्चन यानी गेस्चर्स, यानी कि ओपन आर्म्स, आपने हाथ बांधे हुए नहीं है ना, आपकी मुट्ठियां बंद नहीं है यानी आप रिलैक्स हैं, आपकी मुट्ठियां बंद है यानी आप गुस्से में हैं, आप लड़ाई कर लेंगे। फेस फॉरवर्ड यानी कि आप अपने एक्सप्रेशन से बता सकते हैं कि मैं आपको पसंद नहीं करता, मैं आपकी ओर नहीं देखूंगा, मैं कहीं और देखूंगा। टोन ऑफ वॉइस, जैसा मैंने बताया आपको, टोन ऑफ वॉइस से बहुत आप एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देते हैं। आई कॉन्टेक्ट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आपको बैड न्यूज़ देनी है तो आप, आपकी आंखें बहुत सारी चीज़ें बोल देती है। इवन आप किसी को कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं तो आपकी आईज काफ़ी चीज़ें बता सकती हैं कि आप कैसी अच्छी बात बता रहे हैं, बुरी बात बता रहे हैं। तो उसका नोडिंग वो है कि ना, आप हाथ सिर को हिलाते हैं, जब आपको कोई जब बात बताता है तो आप हिला हिला कर, सिर हिला के सुनते हैं, या आप ना करके सुनते हैं, ना करके कि मैं अभी बात तो सुन तो रहा हूँ पर मैं अभी बात से एग्री नहीं हूँ, और हाँ करके सुन रहे हैं यानी कि मैं आपकी बात से एग्री भी हूँ और सुन भी रहा हूँ। उसके बाद हम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ये इंपॉर्टेंट 7 C's है। इन 7 C's की हमें कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। उसमें पहला सी है, वो है क्लियर। आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। लोग क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, पीपुल लाइक क्लियर कम्युनिकेशन। आप लोगों को घुमा फिरा के बात बोलेंगे, थोड़े टाइम तक तो लोग आपसे खुश होंगे, देन यू विल बिकम द जोकर ऑफ द सर्कस। आप बातें घुमा घुमा के कर रहे हो, बाद में लोग आपसे परेशान हो जाएंगे, आप लोग कहेंगे ये तो सिर्फ फालतू का मसाला है, टाइम पास है। तो इसलिए पीपुल वांट क्लियर मैसेज। आप जिस ऑफिस में काम करते हो, आपका बॉस आपसे क्लियर मैसेज चाहता है। आप थोड़े दिन तक तो चला सकते हो, यू कैन फूल सम पर्सन फॉर फ्यू डेज, you can fool all person for few days, but you cannot fool all person for all the days। ये ध्यान रखिए। तो क्लियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बातें क्लियर है कि नहीं, जैसे कि क्लियर टारगेट, क्लियर डेटा, कि कितने लोग आए थे आज बहुत सारे लोग आए थे। और ना व्हाट इज द डेफिनेशन बहुत सारे, आपका 10 बाय 10 का ऑफिस है, इसमें 4 लोग भी आए खड़े होंगे तो बहुत सारे हो गए। वॉट यू वॉन्ट टू से बाय द बहुत सारे। तो व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, आपसे फोन पे कोई पूछ रहा है कि आज कितने लोग हमारे ऑफिस में आए, कितने लोगों ने हमारी स्कीम में इंटरेस्ट दिखाया, कितने लोग जो है हमारे यहाँ इंक्वायरी करने आए, आपने कहा बहुत सारे लोग आए, तो वो बहुत खुश हो गया, बोले बहुत सारे आए, 40-50 आए होंगे। तो फिर वापस ने जब नंबर्स मांगे तो पता चला 5 लोग आए थे। बोले 5 लोग बहुत सारे कैसे हो गए, कि वो 5 लोग एक साथ आए, ऑफिस पूरा भर गया, तो ऑफिस भर गया तो बहुत सारे हो गए। तो ये वह क्लियरिटी नहीं होना, तो क्लियर होना चाहिए। कंसाइज, कंसाइज में क्या है, आप टू द पॉइंट हो, आप ज्यादा फैला के नहीं बोले, घुमा फिरा के ना बोले। आप पॉलिटिशियन हैं, आप ऑरेटर हैं,
आप लंबा बोलोगे चलेगा। आप इवन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी जब बजट प्रेजेंट करता है वो ज्यादा देर बोलता है, थोड़ा शेरो शायरी बोलता है, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर थोड़े से एग्जाम्पल ज्यादा देता है, चलता है, क्योंकि उस वक्त उसका दिन है, दैट इज हिज डे, हिज और हर डे। उस दिन मतलब पूरे साल का एक दिन जो है फाइनेंस मिनिस्टर का होता है इस देश में, जब व्हेन ही और शी प्रेजेंट्स द बजट। उस दिन में जो बोलेगा चलेगा, वो अपने कहानियां सुनाएगा, शेरो शायरी बोलेगा, और ऐसा होता है। आज से जितने फाइनेंस मिनिस्टर रहे हमारे देश में, उन्होंने शेरो शायरी, कविताएं और कई बार महापुरुषों का नाम लेना ये जरूर किया है। बट हम जब फाइनेंशियल फिगर्स की बात कर रहे हैं और हम फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है और बजट प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो हम उसकी तरह ना बोले। हम ये बताएं कि एग्जैक्टली क्या फिगर्स हैं और क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें जो है हमने की हैं, और आगे हम क्या चीज़ें अचीव कर रहे हैं। कंक्रीट, कंक्रीट क्या है कि वो लगना चाहिए कि आप मजबूत बात कर रहे हो। कैसे? इसे हम बनाना जो है कहते हैं कि ना, बनाना फैक्टर कहते हैं। बनाना फैक्टर क्या, तो दुनिया बहुत फेमस है बनाना फैक्टर, अरुण जेटली इस बारे में बहुत बात किया करते थे। कैसे? आप 5-6 फ्रूट्स को साथ रखिए, बनाना, एप्पल वगैरह वगैरह, देखने में देखने में सबसे मजबूत फ्रूट आपको कौन सा लगता है? देखने में आपको सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रांग फ्रूट जो शायद बहुत भारी, जो बहुत कड़क होगा, वो आपको देखने में बनाना लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा मोटी है और देखने में बहुत ही हमें वो मजबूत लगती है। हमें लगता है तो बहुत ही हार्ड सरफेस है। पर सबसे पहले प्रेशर डालने पे सबसे पहले पिचकेगा कौन? प्रेशर डालने में सबसे पहले जो फ्रूट पिचकेगा वो है बनाना। क्यों? क्योंकि वो दिखने में सबसे ज्यादा मजबूत है पर अंदर से सबसे ज्यादा कमजोर है। इसीलिए कहा जाता है कि क्या हमारी डेमोक्रेसी बनाना डेमोक्रेसी है या हमारा बजट बनाना बजट है। उसी तरीके से हमारी बातें बनाना की तरह है या नहीं। तो अगर हम बनाना की तरह होगी, देखने में तो बड़ी बड़ी हमने बात की, पर जैसे इस पर वो 4 क्वेश्चन करेंगे ना, हम टूट जाएंगे, क्योंकि हम अंदर से कंक्रीट ही नहीं है। हम तो सिर्फ ढोल बजाते हुए आए हैं और जैसे ही 4 क्वेश्चन पूछे और हम तो वहाँ फेल हो गए, यहाँ वहाँ देखने लग गए, क्योंकि हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है। जैसा होता है समझ लो, अभी अपन देखते हैं जो एनसीबी जो पूछताछ करती है रिया चक्रवर्ती से, दीपिका पादुकोण से वगैरह से, तो वो लोग ऐसे क्वेश्चंस तैयार रखते हैं कि अगले की हालत खराब हो जाए। दे आर मास्टर इन इन्वेस्टिगेशन, उनका काम ही ये है। दे हायर सर्विसेज ऑफ साइकोलॉजिस्ट कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन पूछे कि जो एकदम से बम की तरह पड़े और उनकी हालत खराब हो जाए उस वक्त। तो वो दैट इज कॉल्ड कि कंक्रीट आपके पास नहीं है। अगर आपने, इफ यू आर गिल्टी, तो आप 4-5 क्वेश्चन आते ही बिखर जाओगे, बनाना जैसी हालत हो जाएगी, आप प्रेशर पड़ती है आपकी। तो आप अगर कंक्रीट नहीं है तो आप फेल हो कम्युनिकेशन में। करेक्ट फिगर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे बताया, आप ज्यादा दिन तक लोगों को फूल नहीं बना सकते, तो गिव विथ करेक्ट फिगर्स। करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं होगी तो बाद में लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। लोग तो आज के ज़माने में प्राइम मिनिस्टर को नहीं छोड़ते हैं, बाद में उनके पुराने ट्वीट निकाल निकाल के बोलते हैं। इसलिए जो भी लिख रहे हो, जो, इसलिए आप तो आम आदमी हो, आपको फेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जो भी पेपर आप प्रेजेंट कर रहे हो, जो भी स्पीच है, और आजकल तो हर एक रिकॉर्डिंग है। मैं देखता हूँ और मोस्ट ऑफ द पीपल हैव लाइक केप्ट ऑन द कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन। लोगों ने अपने मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, कोई भी कॉल आता है रिकॉर्ड हो जाता है, और फिर क्या होता है बाद में वही कॉल सुनाते हैं, तुमने तो उस दिन ऐसा बोला था। इसलिए आपको पता होना चाहिए मैंने क्या बोला है। चलते फिरते झूठ मत बोल दो। वो पुराना जमाना गया कि झूठ बोल बोल के काम चल जाता था। एक जमाना ऐसा था कि जो रिपोर्टर्स को रिपोर्टिंग के लिए भेजा जाता था कि इतना दूर जाओ और वहां से टेलीग्राम से रिपोर्टिंग भेजो। वो रिपोर्टर्स अपने होटल में बैठे रहते थे, टेलीग्राम कर देते थे आज ये हुआ, क्योंकि उनको लगता था आज यही होगा। उस जमाने में किसी को कोई वेरिफिकेशन ही नहीं था कि वो हुआ कि नहीं हुआ। अखबार में छप जाता था ऐसा हुआ। और एक बार रियल में ऐसा भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि कुछ दिल्ली के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने अपने रिपोर्टर्स को एक फ्यूनरल को रिपोर्ट करने के लिए भेजा। बहुत दूर इंडिया के कोई रिमोट एरिया में एक फ्यूनरल होने वाला था बड़े आदमी का। बोले वो रिपोर्ट करना हमको जाके। वो जो सारे रिपोर्टर्स से फ्रेंड थे वो होटल में बैठे रहे और उन्होंने बोला फ्यूनरल में यही होगा कि सब लोग रोएंगे और फूल फेंकेंगे। उन्होंने टेलीग्राम करके ये रिपोर्ट भेज दी कि लोग रो रहे थे और फूल फेंक रहे थे और अग्नि दी और चिता जलने लग गई। और ऐसा कुछ हुआ उस दिन कि किसी वजह से वो फ्यूनरल एक दिन पोस्टपोन्ड हो गया। अगले दिन अखबारों में न्यूज़ छप गई कि फ्यूनरल हो गया, चिता जल गई, फूल फेंक दिए गए और लोग रोए। बाद में उन्हें पता चला कि हमारे पास ही गलत इंफॉर्मेशन आ गई थी।
तो अल्टीमेटली वो जमाने में ऐसा होता था, लोग ऐसा करते थे। आज के जमाने में तो हर जगह का प्रूफ है। तो इसलिए आपको अपनी इंफॉर्मेशन में करेक्ट होना चाहिए एंड यू नीड टू बी कोहेरेंट इन योर इंफॉर्मेशन, कोहेरेंट इन योर कम्युनिकेशन। व्हाई? जस्ट अ मिनट। बिकॉज कोहेरेंट मीन्स आपका फ्लो ऑफ आइडिया वो प्रॉपर होना चाहिए कि क्या आप जो बात कर रहे हो, जो आपका आइडिया है, मतलब जो स्ट्रेटजी है, तो वो सही है कि नहीं है। मतलब अभी आपने एक आइडिया दिया, फिर कई लोग क्या करते हैं कि वो एक के बाद एक आइडिया देने लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं वैसा हो जाएगा। इस तरीके से नहीं चलता। तो आप क्लियर आइडिया दे कि भाई क्या ये चीज वर्क करेगी कि नहीं करेगी। तो यू नीड टू बी कोहेरेंट इन योर कम्युनिकेशन, देन योर कम्युनिकेशन शुड बी कंप्लीट। आधी बात न छोड़े। आधे सच ने जो है वो द्रोणाचार्य का वध करा दिया था। अश्वत्थामा हत नरो व कुंजरो। युधिष्ठिर से आधा झूठ बुलवा के, आधा सच बुलवा कर द्रोणाचार्य की हत्या हो गई थी, और उसका पाप भी बाद में युधिष्ठिर को भुगतना पड़ा था। इसलिए इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट। आपने बोला अश्वत्थामा मर गया, पर आपने ये नहीं बोला कि इंसान नहीं, हाथी का बच्चा था वो। आपने ये चीज छुपा दी तो ये द्रोणाचार्य बेचारा डिप्रेस हो गया और उसने शस्त्र छोड़ दिए। अगर आप बोल देते द्रोणाचार्य को कि नहीं हाथी का बच्चा था, तो वो नहीं हारता। इसलिए इतनी बड़ी चीज सिर्फ आधे सच से आधे झूठ से हो गई। तो आपका इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा एक शायर ने कहा है कि झूठ बड़े या घटे, नहीं सच बढ़े या घटे तो सच ना रहे। वो शायर कहते हैं सच बढ़े या घटे तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं। यानी कि सच के अंदर थोड़ा सा भी बढ़ा दो, आप एक्सट्रागरेट कर दो उसको, थोड़ा सा भी कम कर दो, सच में एक वर्ड भी कम कर दो, तो नाउ दिस इज नॉट ट्रुथ। ट्रुथ में 1% भी कम हो गया वो ट्रुथ नहीं है। ट्रुथ में एक चीज भी बढ़ा दी तो ट्रुथ नहीं है। पर झूठ तो कितना भी हो सकता है। इसलिए अगर आप थोड़ा सा भी घटाओगे बढ़ाओगे तो आपकी इंफॉर्मेशन काम की नहीं है, वो झूठ ही कहलाएगी। एंड देन योर इंफॉर्मेशन शुड बी courteous, योर कम्युनिकेशन शुड बी courteous। हर एक जना रेस्पेक्ट चाहता है, ये याद रखिए आप। और इस दुनिया में हर एक जना जो है वो रेस्पेक्ट डिजर्व करता है। तो इसलिए हमें कभी भी किसी को कम नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बाद में वो चीज हमारे लिए डेंजरस हो जाएगी। ऐसा होगा कि वो हमने जिसको, आप ये देखिए इंडिया के बाद यूरोपियन कंट्रीज में आप एग्जांपल देखेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स जब अपनी कार में बैठते हैं तो कार में बैठने से पहले ड्राइवर से हाथ मिलाते हैं, कार के ड्राइवर से। हम इंडिया में सोच नहीं सकते ऐसा। वो किसी जगह पे जाते हैं तो दरवाजे पे जो आदमी खड़ा होता है गार्ड, उस गार्ड से हाथ मिलाते हैं। यूरोपियन कंट्री से या कनाडा से कोई प्रेसिडेंट आता है इंडिया में, और इंडिया में जिस जहाँ एंटर करता है वहां पे जो गार्ड खड़ा होता है उससे वो हाथ मिलाता है। इंडिया का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऐसा जनरली नहीं करता है, क्योंकि हम इंडियंस में एक ईगो है, जो कॉलोनियल क्वालिटीज हमको दे दी गई। अंग्रेजों ने सिखा दिया कि लोग छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, जबकि वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो लोग हम ऐसा बहुत ही टाइम से सिविलाइज हैं, जहाँ बहुत पुरानी डेमोक्रेसीज हैं, वो लोग छोटे में छोटे आदमी से हाथ मिलाते हैं। हमारे यहाँ तो हम हाथ मिलाना में भी देखते हैं कि किससे हाथ मिलाना चाहिए, किससे हाथ नहीं मिलाना चाहिए। तो एवरीवन डिजर्व्स courtesy। सो सिंस हमारा थोड़ा सा प्रोग्राम देर से शुरू हुआ है और तो कंक्लूड भी करना है टाइमली, है ना, क्योंकि टाइम हो चुका है। मैं 2 मिनट में से कंक्लूड भी करता हूँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कम्युनिकेशन में हमको फेस करने को मिलती है। कोई जना कहता है 6 है या 9 है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इमेज है। दोनों जने सही भी होते हैं, फिर भी दोनों जने लड़ते हैं। और हमारे देश में ही नहीं, सभी जगह ये हो रहा है। और इस बार हम वंडर कर रहे हैं कि यूएसए जैसे पावर के अंदर, यूएसए के अंदर भी आज लोग ऐसे ही लड़ रहे हैं। तो क्योंकि उनका कम्युनिकेशन का तरीका बदल गया है। दे हैव बिकम सो एग्रेसिव कि पहली बार ऐसा हुआ कि वह प्रेसिडेंशियल डिबेट में जॉन बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को बोला शट अप। कितनी बड़ी बात है। यूएसए में जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है दूसरे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को कह रहा है शट अप मिस्टर प्रेसिडेंट। ऐसा मतलब कितना पूरा दुनिया जो है वो स्टंड हो गई है कि कैसे हो गया। तो हम कौन सी, तो कम्युनिकेशन का
में डिजास्टर आ चुका है, क्योंकि उन लोगों का अपनी अपनी बातें रखने का तरीका अलग है और ये चीजें डिजास्टर बनती जा रही है। तो अगर हम कर्सियस होंगे और दूसरे के तरफ से सोचेंगे कि वो अगले को वो कैसा लगता है, तो ही हम इस चीज को समझ पाएंगे, है ना। जैसे और हम उस चीज को चीज समझ पाएंगे कि अगले को वो चीज किस तरीके से उसको वो फेस कर रहा है। सो आज हम इतनी ही बात कर पाए। मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया सिकासा जोधपुर का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ, धवल जी का और चेयरमैन सर का, और स्पेशली जो अक्षय और मोहिबुर हैं, जिन्हें मैं मतलब दोनों मेरे ही सिखाए हुए बच्चे हैं, तो उनको भी मैं थैंक्स करता हूँ, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और आप लोगों ने मुझे सुना। और कभी मौका पड़ेगा तो ज़्यादा गैदरिंग के साथ में हम और अच्छी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू धवल जी। Thank you, sir. Now I would request Mohibur Rahman for a vote of thanks. Mohibur ji, over to you. Thank